Okay, so kids, the recording has started. I think we can just start off with the work. शुरू करें तनीषा. Yes, sir. ओके, जो ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं. हाँ, ओके, तो कुछ कैटेगरी ऑफ सम्स है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं की थी, तो वो देख लेते हैं फटाफट. ओके, तो किस यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ some function with respect to sec inverse of some other function. So the method was, what we used to do is that we should call one function as u, for example. तो वो पहले वाले हम लोग को उसको u बोल देते हैं, tan inverse of x upon under root of 1 minus x square, इसको हम लोग u बोल देते हैं. एंड दूसरे वाले को v बोल देते हैं. So v will be sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? एक्चुअली हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू v. तो एक्चुअली फाइंड क्या करना है? टू फाइंड we have to find du by dv. Is it okay? Yes, sir. Okay, now this problem is actually based on substitution. तो हम क्या करेंगे? I'll just say here for u, I'll say put x as sin theta, क्योंकि अगर आपको पता होगा एक्सप्रेशन देख के पता चलता है. तो यहाँ पर अगर मैं sin theta पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ओके, यहाँ पर आ जाएगा sin theta एंड किस नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ sin square theta, 1 minus sin square theta. Now 1 minus sin square theta will become cos square theta and under root of cos square theta will be what? Cos theta. Is it okay? Yes, sir. So I get here tan inverse of tan theta. Of course, I can apply my cancellation law. So I get here theta, and then from here theta can be written as, from here theta can be written as sine inverse of x. Is it okay? Yes, sir. And so suppose I take a derivative here, then sine inverse of x का derivative होता है 1 upon under root of 1 minus of x square. Is it okay? Yes, sir. Okay. Okay, fine. आगे इतना होने के बाद अभी यहाँ पर भी हमको appropriate substitution करना है. So I'll say here put x equal to, पता है कोई बताएगा क्या पुट करना चाहिए मुझे यहाँ पर? What do you think? What I should put? Cos theta. Yeah, I should put cos theta. क्योंकि अगर मैंने cos theta पुट किया तो मुझे मिलेगा sec inverse of 1 upon 2 cos square theta minus 1. और ये जाना पहचाना सा फॉर्मूला है. अगर आपको पता होगा, ये बंदा is none other than cos 2 theta. Also, theta. Okay, now cos 2 theta will go up, so it becomes sec 2 theta. Okay, and then I'll apply the cancellation law, it becomes 2 theta, and then I'll back substitute. Okay, from here the theta will be cos inverse of x, so I get twice of cos inverse of x. Is it okay? Yes, sir. And when I take a derivative here, cos inverse of x का derivative is minus 2 upon under root of 1 minus x square. Is it okay? Yes, sir. And when I divide, so finally I know that your du by dv can be written as, it can be written as du by dx upon dv by dx. So this is dv, yeah. And I'll just substitute it. I get 1 upon under root of 1 minus x square. This is minus 2 upon under root of 1 minus x square. After simplifying, I get the answer as minus 1 by 2. Minus. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. ओके, उसके बाद 1.5 में जो सम्स है ना, दे ऑल बेस्ड ऑन, अगेन वही करना है, फाइंड dx by d theta, फाइंड dy by d theta, फिर डिवाइड करो, फिर आपको उसको So- और एक बार, या So Yeah. can you go back for 1 minute? या I just want to see it again, sir. इज इट ओके? Yeah, 1 minute. So I just want to just see the last part. या Yes, thank you, sir. ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन, आई विल डू द सेम थिंग, बट यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है. चेक कर लो, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है. इट्स डबल डेरिवेटिव. यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव करना है. तो अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट, करना कुछ नहीं है. सबसे पहले एक काम करेंगे यहाँ पर, वो है आपको x, मैं एक ही सम कर रहा हूँ कि रिमेनिंग आई थिंक ऑल कैन मैनेज. यहाँ पर आपका x दिया है आपको, and they've given us y also. Y is a into 1 minus cos theta. So what you have to do is take a derivative, so it becomes dx by d theta.
Now a का derivative, theta का derivative will be 1 and sin का derivative will be cos theta. Is it okay? Yes, sir. And dy by d theta, again a तो constant तो बाहर आ जाएगा, 1 का derivative, 1 is a constant तो derivative हो जाएगा 0 and cos का derivative होता है minus sin theta, so I get sin theta. Is it okay? Yes, sir. Well, इतना होने के बाद finally I can write here what I can say. Your dy by dx can be written as dy by d theta upon dx by d theta. Is it okay? Yes, sir. So I get here a into this becomes sin theta और यहाँ पर आ जाएगा a into 1 minus of cos theta. Is it okay? Yes, sir. Now a and a will get cancelled, so finally I get dy by dx as ऊपर आ गया sin theta और नीचे आ जाएगा 1 minus of cos theta. Is it okay? Yes, sir. Now, of course, once I do this, अब थोड़ा simplification भी कर सकते हैं. तो kids, I can write sin theta as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Do you agree? Yes, sir. And 1 minus cos can be written as 2 sin square of theta by 2. Is it okay? Yes, sir. Now this 2 and 2 will get cancelled and sin will get cancelled. So I get here cos upon sin will become cot of theta by 2. Getting me? Yes, sir. Kids, ये तो खाली पहला वाला डेरिवेटिव था, लेकिन आपको तो डबल डेरिवेटिव करना है, तो आपको और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा. I'll say again, differentiating with respect to x, तब जाके आपको यहाँ मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब एक बार सुनो ध्यान से, राइट साइड में जो आप डेरिवेटिव करोगे सर एक बार, हाँ या सर एक बार वापस से बोलो. ओके, मैंने बोला और एक बार डेरिवेटिव करना है भाविक, ठीक है? ओके, मैंने और कुछ स्पेशल बात नहीं बोली, ठीक है? अरे नहीं सर, वो ऊपर से, वो ऊपर का स्टेप वापस बोलो. ठीक है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया खाली, ये वाला ट्रिगो आता है ना? यस सर, यस सर. हाँ, तो मैंने खाली फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं ना, x आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब आपको समझना पड़ेगा राइट साइड में जो है ना प्रॉब्लम किड्स, वो इट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो बाद में आपको d थीटा बाय dx लगाना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अरे डू यू एग्री? Yes, sir. तो एक काम करता हूं मैं इसको पहले ठीक से करता हूं, ठीक है? आई विल गो स्टेप वाइज, तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं. एक मिनट, या so I'll just do it stepwise. So kids, हम क्या करेंगे, we are going to differentiate this guy cot theta by 2 है with respect to x करने वाले. अब चलो आप बता दो मुझे, cot का डेरिवेटिव क्या होता है? What is cot का डेरिवेटिव? अरे cot x का डेरिवेटिव क्या है? sec square. फटका तेरे को देता और फटका देता माइनस cos माइनस cosec square थीटा माइनस cosec स्क्वायर ना. अरे हाँ के नहीं? हाँ सर. तो cot x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec स्क्वायर x. So cot theta by 2 का डेरिवेटिव विल बी माइनस cosec स्क्वायर ऑफ theta by 2 into d by dx of d theta by 2. चलेगा क्या? Yes, sir. So I get here minus cosec square of theta by 2 और ये हाफ यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो आपको मिलेगा d theta by dx. Do you agree? Yes, sir. So I get here minus cosec square of theta by 2 upon 2. यहाँ पर kids I can write this as 1 upon dx by d theta. Do you agree? Yes, sir. Yes sir. बोलो ऐसे क्यों लिखा? Because I can take this value right now from here. Yes sir. Yes, sir. तो अभी हम यहाँ से वैल्यू को उठा के वहां पर पुट कर सकते हैं. तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, आई जस्ट राइट इन डिफरेंट कलर, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बिकम, देखो ऊपर का ये है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 2, एंड ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझको पता है ऑलरेडी. देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? a times, okay, a times of 1 minus cos theta. Is it okay? Yes, sir. Yes sir. अभी मैं चाहूँ तो उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ तो I can write 1 minus cos as 2 sin square theta by 2. Do you agree? Yes, Yes sir. sir. And that sin square will go up becomes cosec square. तो करने के लिए बहुत कुछ है. Do you agree? Yes, sir. Yes sir. Okay, but I'm just leaving it here. I think आगे का सिंप्लीफिकेशन कोई भी मैनेज कर सकता है. So ऐसे समझ आएंगे जहां पर आपको डबल डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं. Is it okay? Yes, sir. Okay, अच्छी बात है.
उसके बाद मैं आपको और एक सम बताता हूँ, वो थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला सम। ये सम भी मैंने क्लास में सॉल्व किया था। x is sin theta, your y is sin cube theta, and what they are saying is your theta is pi by 2. Now see kids, what happens kids, अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, they'll find dx by d theta, they'll find dy by d theta, फिर डिवाइड करेंगे जैसे किया था मैंने प्रीवियस सम में, वैसे ही करेंगे, जो गलत नहीं है। बट किड्स कभी कभी हम लोग अपना स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, पता है कैसे? एक काम करते हैं ना यार, हमें तो डबल डेरिवेटिव ही फाइंड करना है ना, एंड ऑफ द डे हमें डबल डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव ओनली, Yes, sir. Yes. है ना, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं हम ना, रादर थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं, और कर सकते हैं हम लोग आसानी से। पता है कैसे? नाउ सी y इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन क्यूब थीटा, बोले तो साइन थीटा का क्यूब है, डू यू एग्री? Yes, sir. बट साइन थीटा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू? X. So don't you think I can add y equal to x cube? Do you agree? Yes, sir. Isn't that cool now? Yes, sir. अब इसको दो बार डेरिवेटिव करना है, जो बच्चा पैदा नहीं हो वो भी कर सकता है, dx dy by dx is 3x square, और अगर और एक बार डेरिवेटिव हम करेंगे 6x. तो आपको 6x मिल गया। 6x. हाँ, लेकिन अब यहाँ पर आपको थीटा पुट करना है 90, लेकिन यहाँ पर थीटा तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, x तो है ना, तो x में यूज करेंगे। चलो देखो, x आपके पास साइन थीटा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर थीटा 90 पुट कर दो, तो आपके यहाँ से x क्या मिलेगा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1। 1. So इन शॉर्ट आपका जो डबल डेरिवेटिव है ना, इट विल बी ऑफ कोर्स थीटा पाई बाय 2 में मुझे सिर्फ x को 1 पुट करना है, तो जस्ट पुट x as 1, so I get the answer as 6. Is it clear? Yes, sir. Okay, तो अगेन ये एक सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ऐसे सम्स है जो मैनेजेबल है, जो खुद से कर सकते हैं आप। उसके बाद आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सम्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, तो ठीक है करके बताता हूं मैं। ये सब प्रूव्ड टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, तो मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू, यहां पर है e रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x। तो ठीक है, काम करते हैं, लेट्स टेक अ डेरिवेटिव। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस गाय विद रिस्पेक्ट टू x, आई विल गेट dy by dx। यहां पर ये आपके फंक्शन का काम करेगा, e रेज टू f of x। व्हाट इज e रेज टू f of x का डेरिवेटिव? e raised to f of x Is e raised to f of x into derivative of f of x. into derivative of f of x. Do you agree? Yes, sir. Now ये जो m है ना वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर e raised to m tan inverse of x, और डेरिवेटिव के जो अंदर जो बचेगा वो है tan inverse of x. Do you agree? Yes, sir. Now what is tan inverse of x का derivative? It is 1 upon 1 plus x square. Do you agree? Yes, sir. But this guy, don't you think this guy is none other than y. So I can write here, now I'll shift this guy there on the left hand side. So I get here 1 plus x square. यहाँ पर है dy by dx. This is m into y. Is it okay? Right. Yes, sir. Okay. अब एक काम करते हैं, हम इसको और एक बार डेरिवेटिव करते हैं। Let's take a derivative once again. Okay? और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, और फिर देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। या Sir, can you explain it again? Last step first. लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ये आपका dy by dx है, समझा। तो उसको शिफ्ट कर दिया और मैंने उसको y बोल दिया, चलेगा ना ऐसा? Yes. ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे ना कि ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. तो देखते क्या मिलेगा, हमें मिलेगा u into derivative of v, that is d square y by dx square। चलेगा, u derivative of v plus v into derivative of u will be 2x। चलेगा, 2x. और Yes, m sir. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx। Is it okay? Yes, sir. Now I can shift this term on the left hand side, and then I'll take dy by dx common. So finally the answer I will get is 1 plus x square d square y by dx square. Shift on the left hand side, so I get here 2x minus m into dy by dx is equal to 0.
इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ऐसे सम्स है कुछ जो आपको करने पड़ेंगे. चलो और एक सम देख लेते हैं इसी कैटेगरी का. चलो अगेन किड्स, हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज टू m. शुरुआत करें. Yes, sir. सवाल है शुरुआत कैसे करेंगे कि सबसे पहले log has the power to pull the power down. Do you agree? Yes. तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये पावर को नीचे ले लेते हैं. ओके, उसके पहले हम देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या. ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा m टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, ना अभी काम करते हैं, अभी हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं. ओके, और डिफरेंशिएट नहीं, हाँ चलो डिफरेंशिएट कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस गाय विद रिस्पेक्ट टू x. uv की जरूरत नहीं पड़ेगी, m तो कांस्टेंट है ना. हाँ, तो m बाहर आ गया. log f of x का डेरिवेटिव लिखेंगे अभी. 1 upon f of x into derivative. तो यहाँ पर आएगा 1 upon f of x, 1 upon f of x चलेगा ना. 1 upon f of x into derivative of f of x. Okay. Yes, sir. Now let's take a derivative. यहाँ पर आएगा m upon, this is x plus under root of x square plus a square. यहाँ पर आपका x का डेरिवेटिव 1 होगा, चलेगा. 1. Yes. Now this will be root f of x. Now root x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 root x. 1.2 x. तो root f of x का डेरिवेटिव होगा 1 upon 2 under root f of x into derivative of f of x. Do you agree? Yes, sir. Now once I reach here, now let me simplify it. This is x plus under root of x square plus a square. 1 plus. This is 1 upon 2 under root of x square plus a square. यहाँ पर x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, चलेगा. 2x. And constant Yes, का sir. डेरिवेटिव 0. Is it okay? 0. Yes, sir. I can cancel this term. So then when I take an LCM, see what happens. I get here dy by dx is equal to, this is m upon x plus under root of x square plus a square. और यहाँ पर when I take an LCM, I get under root of course, I get under root of x square plus a square plus x upon under root of x square plus a square. Do you agree? Yes, sir. Now, don't you think this entire term will actually get cancelled? Do you agree? Yes, sir. So now let me shift this term on the left hand side. So I'll get here under root of x square plus a square dy by dx is equal to m. Is it okay? Yes, sir. Now let me square both sides, क्योंकि आपका requirement देखो, requirement अगर आप देखोगे, क्या हो गया? अगर आप requirement देखोगे यहाँ पर रूट नहीं है, हाँ कि नहीं, रूट नहीं है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, जिससे क्या होगा, I'll get here x square plus a square into dy by dx the whole square, and यहाँ पर आ जाएगा m square. Is it okay? Yes, sir. अब हम वापस से और एक बार डेरिवेटिव करेंगे. So I'll say again differentiating with respect to x. तो क्या होगा, this will become your u and this will become your v. So again apply uv rules. यहाँ पर आएगा u into derivative of v. Now इसका derivative will be twice dy by dx into derivative of dy by dx, that is d square y by dx square. है ना, समझा गया? देखो ये आपका फंक्शन का स्क्वायर है, तो फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. इज इट ओके? Yes, sir. dy by dx the whole square का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस dy by dx into derivative of dy by dx, that is d square y by dx square. Is it okay? Yes, sir. u derivative of v plus v Derivative.
into derivative of u. Now u का derivative will be 2x. 2x. A square is a constant. Derivative is 0. Is it okay? Yes, sir. A square constant है by the way. Is it okay? Yes, sir. And right side constant है. Right side is a constant. So derivative becomes 0. Do you agree? 0. Yes, sir. And then finally I can divide throughout by 2 dy by dx. So when I divide, what will happen? See, I'll get x square plus a square. Plus a square. Now divide करने से ये वाला जो term disappear हो जाएगा. Do you agree? Yes, sir. यहाँ से 2 भी disappear हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा d square y by dx square plus यहाँ पर आ जाएगा x dy by dx equal to 0. I hope ये clear है. Yes, sir. ओके तो ऐसे बहुत सारे सम्स है आपके लास्ट एक्सरसाइज में, तो ऐसे सम थोड़े से प्रैक्टिस होने चाहिए, तब जाके आपको आदत हो जाएगी. ऐसे सम नॉर्मली किड्स आपको 4 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. हाँ, अब किड्स ये जो मैंने सम खत्म किया ना किड्स, आपके जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था ना, सम्स यहां तक ही थे प्रीवियस ईयर में. लेकिन अब क्या हुआ है किड्स, अभी जो थोड़े सम्स एक्स्ट्रा सम्स आए हैं, जो थोड़े नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं. है इजी काफी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं. ओके, अब देखो यहां पर कि जो सम्स कैसे हैं, तो मैं आपको एक दो सम बताऊंगा तो आपको समझ ही जाएगा. सो इट्स नथिंग ग्रेट इन इट. नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब हमको फाइंड क्या करना है? dy by dx फाइंड करना है. तो पहले मुझे आपको एक बात बतानी है किड्स, आप लोग याद रखना, dy by dx is always equal to 1 upon dx by dy. आपको पहले ही याद होना चाहिए. Is it okay? Yes, sir. और एक बात आपको पता होना चाहिए, ये जो बंदा है ना किड्स, ये वाला बंदा, ओके, ये एक्चुअली इट्स नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. इसका डेरिवेटिव है. और ये जो दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ y है ये. और ये क्या है पता है? ये है डेरिवेटिव ऑफ x. एंड x क्या है? x इज एन इनवर्स फंक्शन. डू यू सी दिस? Yes, sir. So it's a derivative of x, that is inverse function. तो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड जो है इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट साइड इज द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. पहले क्लियर हो जाना चाहिए. अब सम सॉल्व कैसे करना है? सम सॉल्विंग बहुत इजी है, बताता हूं कैसे. तो किड्स अगर कभी भी बोलेंगे वो लोग फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब dy by dx ढूंढना है. यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब आपको dx by dy यूज करना है, मतलब आपको ये रिलेशन यूज करना है. तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम कर लो. आपके पास मैं पहला वाला सम लेके बता, चलो पहला नहीं कुछ और ले लेता हूं. चलो मैं थर्ड वाला लेके बताता हूं. आपके पास y है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2. अब ये क्या है? दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x. तो आपको करना है क्या? आपको कन्वर्ट करना है x एज अ फंक्शन ऑफ y. तो क्या करेंगे? ये y एज अ फंक्शन ऑफ x को कन्वर्ट करो x एज अ फंक्शन ऑफ y. तो क्या करें हम? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे. क्यूब बोथ साइड्स. Now and then shift that 2 there. So what do you get here? You get x is equal to y cube plus 2a. Is it okay? Yes, sir. And this guy is x as an inverse of y. पब्लिक को समझा गया? Yes, sir. अब बस पब्लिक देखो, अब तो बहुत इजी है. अब तो सिर्फ डेरिवेटिव लेना है. डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा dx by dy, और यहां पर मिलेगा 3y square. Is it okay? Yes, sir. And फिर फाइनली रिजल्ट यूज करने का, we know that dy by dx can be written as 1 upon dx by dy. And now substitute it. तो आपको मिलेगा 3y square. हाँ के नहीं? Yes, sir. बट एक बात सुनो, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए. dy by dx का आंसर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए. तो एक काम करेंगे, यहां से उठाएंगे. ओके, यहां से देखो, यहां से. ओके,
कैन आई राइट, देखो यहाँ पर y है ना, ओके ऑफ कोर्स यहाँ से उठा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से उठा लें। आपके y का वैल्यू क्या है? कैन आई पुट इट हियर? So Yes, I'll get the answer as 1 upon 3 times y square. Y square मतलब x minus 2 का क्यूब रूट जो है उसका स्क्वायर। Is it okay? yes, sir. है ना, y का वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ x minus 2। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो है 1 upon 3 times of x minus 2 whole raised to 2 by 3 by 3. and this becomes your answer। क्या पब्लिक समझा क्या? Yes, sir. तो करना कुछ नहीं है, y in terms of x को कन्वर्ट करने का x in terms of y, डिफरेंशिएट करो with respect to y, you get dx by dy and then divide it, that's it, और कुछ नहीं करना है। Is it okay? Yes, sir. Let's try some more sum, और एक सम ट्राई कर लेते हैं इसी कैटेगरी का। चलो मैं फोर्थ वाला ट्राई कर लेता हूँ। चलो फोर्थ वाला, log of 2x minus 1, okay, so y is equal to log of 2x minus 1। ओके, मेथड क्या है? y in terms of x को क्या करना है आपको? अरे क्या करना है? x in terms of y। कोई बताएगा हाउ टू कन्वर्ट दिस एज x in terms of y? कैसे करना चाहिए x in terms of y? बताओ बताओ, हाउ टू मेक इट x in terms of y? कैन एनीबडी टेल मी? 2x minus 1 equals e raised to y. या अरे यहाँ पर बेस क्या है? E. किड्स यहाँ पर बेस क्या है? e ना? E. Yes. तो कैन आई यूज माय logarithmic to exponential form? Can I use it? Yes, sir. So 2x minus 1 can be written as e raised to y. Is it okay? Yes, sir. So 2x is equal to e raised to y plus 1. So that's I get x as 1 upon 2 times of e raised to y plus 1. Is it okay? Yes, sir. Now differentiate this guy with respect to y. So you get dx by dy. And e raised to y ka derivative is e raised to y, and 1 ka derivative will be 0. Do you agree? Yes, sir. And then finally I can say we know that dy by dx can be written as 1 upon dx by dy. Is it okay? Yes, sir. So this becomes 1 by 2 times of e raised to y. So I get 2 upon e raised to y. Now convert this e raised to y. So now from here, this e raised to y finally can be written as 2x minus 1. Is it okay? Yes, sir. Okay, तो सारे सम्स में ऐसे ही हैं, ठीक है? तो कभी भी वो लोग बोलेंगे ना कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करो यूजिंग द इनवर्स, तो ये हमेशा करने का। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अगेन अभी ये सब सिमिलर प्रॉब्लम्स है, तो आपको भी समझ जाएगा सब। देखो क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, मतलब आपको dx by dy ढूंढना है। और हम क्या बोलेंगे? dx by dy is 1 upon dy by dx. Do you agree? Yes, sir. तो बस कुछ बड़ी बात नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक टू सम्स फ्रॉम हियर टू। चलो पहला वाला ट्राई कर लेते हैं, तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। y is equal to x square e raised to x. ओके, अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर u भी आएगा, तो इट इज u into derivative of e raised to x is e raised to x E raised to x. plus e raised to x into x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। 2x. ऑफ कोर्स यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x and e raised to x कॉमन आ गया, तो I'll get here x plus 2. Do you agree? Yes, sir. And then हम लोग बोलेंगे we know that इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब dx by dy ढूंढना है। Dx by dy. dx by dy is 1 upon dy by dy by dx. and we can just substitute and get the answer. Hey, is it okay? Yes, sir. एक मिनट, अरे ये हैंग हो गया यार। ये आप लोग की क्लास में ऐसे ही क्यों होता है यार ये? एक मिनट। 1 minute kids. One minute, yeah.
अरे यार लगता है इसको रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, एक मिनट किड्स, स्टॉप द शेयर।